morning class. Let's continue our revision. What is corrosion? When metal react with air, water, acid, etc., then they form oxide layer on the surface of metal and it start weaken the metal, it start corroding, and the whole process is called corrosion. So corrosion में आपका rusting of iron is the best example. Definitions: it is the changing of surface of metal element into a compound. For example, ठीक है, किसी भी metal element को किसी भी compound में change करते हैं, means oxide form करते हैं, iron to iron oxide, ठीक है. So what happens when silver react with oxygen? It forms silver oxide. But in corrosion, you will see that silver react with, why silver turns black? Because silver react with hydrogen sulfide and it turns and it forms silver sulfide which is black in color. ठीक है. So what is rusting? Rusting is the special name given to the corrosion of iron. तो आयरन में corrosion होता है, उसके लिए एक special name दिया गया है rusting. Rusting of iron is the best example of corrosion. So when iron react with oxygen, it forms iron third oxide. यहाँ पे जो थर्ड लिखा है रोमन नंबर पे बेटा, it is the oxidation state. ये oxidation state है. And how do we find it? ठीक है, रोमन नंबर में आपको जो लिखा है, it's the oxidation state of iron. The formula of iron oxide is Fe2O3. We know that oxidation state of oxygen is -2, and we have to find out the oxidation number of iron. So what we will do? 2 into x, 2x. ठीक है, there are 2 iron atoms. So 2 multiplied by x equal to 2x plus 3 to the 6. But -6 होगा because -2 है. -2 into 3 equal to 0. So 2x minus 6 equal to 0. So x is equal to 6. 2x is equal to 6 हो जाएगा. ठीक है, x is equal to 6 by 2 यानी 3. So oxidation state of iron is +3. ठीक है, oxidation number +3. That's why it is written iron third oxide. ठीक है, this is the oxidation number of iron which is written in Roman form, Roman numeral. ठीक है, रोमन नंबर पे जो आपका लिखा है वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है. Physical protection. How we can protect metal from corrosion? So we can protect by plastic coating. Plastic या तो coating कर दे उस metal पे, तो corrosion we can prevent corrosion. Oil and grease, oil और grease लगा दे उस पे तो भी. ठीक है, paint by applying paint on iron object या any other object, we apply paint. Tin plating मतलब कोई भी अदर मेटल, क्रोमियम, टिन, आयरन, निकल, सॉरी क्रोमियम, टिन, निकल, इन सब की क्या करते हैं ऊपर से प्लेटिंग मतलब एक लेयर लगाते हैं. सो इट कैन प्रिवेंट corrosion. ठीक है, तो these are the physical protection of corrosion. Now direct electrical protection. Direct electrical protection कैसे करते हैं? Means इसमें क्या करते हैं, आयरन को कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और पावर सप्लाई. ठीक है, किसी भी बैटरी की जो नेगेटिव, बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव. सो वी कनेक्ट आयरन टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ठीक है, कनेक्टिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कार बैटरी टू द कार बॉडी. नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी की होगी वो आपका किससे कनेक्ट कर देंगे, कार की बॉडी से. इससे भी क्या होता है आपका corrosion स्लो होता है. ठीक है, और ओशन लाइनर्स यूज डायरेक्ट इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन व्हेन डॉक्ड. ओशन में जो साइड में जो शिप वगैरह साइड में लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन करते हैं. ठीक है, जब शिप खड़ी होती है काफी टाइम तक वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन. मीन्स क्या होता है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मतलब जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कॉपर, टिन, निकल. ठीक है, इन सब की क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक लेयर बना देते हैं.
लेयर बना देते हैं इन दूसरे मेटल की, तो इससे क्या होता है, आपका कोरोजन नहीं होता। कोई भी ऑक्सीजन आके रिएक्शन करेगा तो वो बाहर वाले मेटल से करेगा, आपका जो अंदर का जो मेटल, जो लेयर के नीचे वाला मेटल है, आयरन है, उससे रिएक्शन नहीं होता। दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट कोरोजन। नाउ द लास्ट टॉपिक इज rancidity. Rancidity, what is rancidity? The food which contain fat and oil reacts with air and moisture. ठीक है, ऑक्सीजन से या वाटर से रिएक्ट करते हैं, then it gives unpleasant odor and flavor. ठीक है, it gives bad smell. This process is called rancidity. When it gets spoiled. हाँ, it gets spoiled. When it left uncovered, it gets spoiled. अगर इसे हम खुला भी छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन से बाहर के एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करके एक अनप्लेजेंट ऑर्डर मीन्स स्मेल, ठीक है, फ्लेवर मीन्स टेस्ट, उसका फ्लेवर, टेस्ट और स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगा, तभी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। एंड दे आर 3 टाइप्स ऑफ रैंसिडिटी, 3 तरह के टाइप नहीं, किस तरह से होते हैं, दे आर 3 causes by which rancidity takes place. First one is hydrolytic. Hydro means water, lytic means breakdown. ठीक है, फूड स्पॉइल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की वजह से, मॉइस्चर, नमी की वजह से, ठीक है, वो खराब हो जाता है, तो वो आपका फूड आइटम खराब हो जाता है। इट मीन्स ये क्या होगा आपका हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी। ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी, ऑक्सी मीन्स नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडेटिव मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द फूड आइटम्स। अगर फूड आइटम से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी हो जाएगा। माइक्रोबियल रैंसिडिटी, माइक्रोब्स मींस बैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर द माइक्रोब्स, ठीक है। सो व्हेन दे रिएक्ट विद फूड आइटम, तो दैट रिएक्शन इज, देन द फूड इज कॉल्ड माइक्रोबियल रैंसिडिटी, देन फूड कॉल्ड माइक्रोबियल रैंसिडिटी। तब उस फूड में क्या हो जाएगा, माइक्रोब का रिएक्शन हो जाएगा माइक्रोब के साथ, वहाँ फूड स्पॉइल हो जाएगा आपका। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So 3 types के होते हैं रैंसिडिटी, हाइड्रोलिटिक, ऑक्सीडेटिव, माइक्रोबियल। वाटर से डिस्ट्रॉय होता है फूड आपका, ऑक्सीजन से और माइक्रोब से, बैक्टीरिया, फंजाई। How we can prevent rancidity? अब रैंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं? यूजिंग इनर्ट गैस इन पैकेजिंग, इनर्ट गैस का यूज करके, जैसे पैकेट्स होते हैं चिप्स वगैरह के, पोटैटो चिप्स के पैकेट होते हैं, नमकीन के पैकेट होते हैं, देखो दे आर फिल्ड विद गैसेस, उसमें कई गैसेस होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, उसके अंदर जो फूड आइटम होते हैं, उसमें जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो भी नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, वो खराब नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है, इनर्ट गैसेस की वजह से वो खराब नहीं होती हैं। और इनर्ट गैस मैंने बताया था, व्हाट आर इनर्ट गैस? Inert gas are those gases, chemically unreactive gases. Those gases which do not react with any element or compound, ठीक है, are called inert gas. Inert gas कौन से होते हैं? Group 18 element. Group 18 elements are called inert gases. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These are inert gases. ये सब पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में है, ग्रुप 18 जो है एलिमेंट का ग्रुप है, लास्ट 18 वाला। ये जो ग्रुप 18 है, मतलब ये रिएक्टिव नहीं होता है ना एकदम? नहीं बेटा, रिएक्टिव नहीं होता है, बट आप 12th क्लास में पढ़ोगे, इससे कुछ एलिमेंट जिनॉन जो होता है कुछ कंपाउंड फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स कंपाउंड, इट इज द एक्सेप्शन प्रॉपर्टी। ओके, यू विल रीड इन योर फर्दर क्लास। All electrons, that is why it's non-reactive. They are chemically reactive because they are completely filled. The outermost orbit has 8 electrons in it. That's why they are chemically unreactive. Okay. For example, जैसे हीलियम होता है, हीलियम आपको क्या करता है, इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट कंप्लीट्स द डुप्लेट, डुप्लेट टर्म वो यूज होता है, डुप्लेट मींस आउटरमोस्ट कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सो डुप्लेट टर्म यूज होगा। बट इन केस ऑफ नियॉन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन?
10 ma'am. Anyone else? Mohammed Afzal. I'm 10. 10. Is it correct? Yes ma'am. 2 in the first cell, Yes. 10. 8 in the last. हाँ. Atomic number of neon is 10. So K shell में 2 electron और L में आपका 8 electron. So in the outermost set 8 electron is present. They are completely filled. So it completes its octet. That's why it is chemically unreactive because it doesn't lose electron or gain electron. ना ही ये lose करेगा ना ही electron किसी से लेगा. That's why it is chemically unreactive. ठीक है, इसीलिए ये सारे क्या होते हैं आपके inert gas होते हैं. Inert gas का नाम है तो याद कर लो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and Nitrogen is also packed. yes. Ma'am, nitrogen is also filled in packets to prevent rancidity. Yes. But nitrogen is unpacked. Because nitrogen is also used in packaging. नाइट्रोजन भी आपका यूज होता है बिकॉज इट प्रिजर्व फूड आइटम्स. ये फूड आइटम को प्रिजर्व करके रखता है, उसे खराब भी होने देता है. दैट्स व्हाई वी यूज नाइट्रोजन इन पैकेजिंग. Ma'am, but we can say that is it complete inert gas or is it just used So for beta prevention? other gases are also used for preservation for packaging. Okay. Not only inert gas, other gases are also used for packaging such as nitrogen. ठीक है. And second one is vacuum packaging. Vacuum packaging मतलब no air is present in that food items. मतलब अगर किसी पैकेट में आप उसे पैक करें तो उसके एटमॉस्फेयर में उसके उस पैकेट में एयर नहीं होना चाहिए. ऐसी पैकिंग करो. ठीक है. नेक्स्ट, स्टोरिंग इन अ डार्क प्लेस. आप उसे किसी अंधेरी जगह पे रख दो तभी भी आपका रेंसिडिटी नहीं होगी वहाँ पे. रेफ्रिजरेटर इन प्रिवेंट माइक्रोब्स. माइक्रोब्स को ग्रो होने नहीं देता रेफ्रिजरेटर. ठीक है. रेफ्रिजरेशन में अगर रख देते हो फूड आइटम्स को. यूजिंग और एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट नाउ व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? Which prevent oxidation. Yes. Oxidation means addition of oxygen and antioxidant means removal of oxygen. मतलब जो prevent करता है. Removal of. ठीक है. जो ऑक्सीजन को रोकता है, अगेंस्ट होता है. Prevent addition of oxygen. That is called antioxidant. Now there are two antioxidants which we use to prevent rancidity. First one is BHA, butylated, H for hydroxy and A for aniso. This is the antioxidant which you use to prevent rancidity. And second one is BHT. Butylated hydroxyprolamine. Yes, butylated hydroxyprolamine. In your examination, question will come from this topic. That name one oxidant, name two oxidant which prevent rancidity. So first one is BHA, B for butylated hydroxy aniso, and BHT, butylated hydroxytoluene. ठीक है. So these are the there only two antioxidants to prevent. beta there are many antioxidant which prevent rancidity, but you have to learn only two antioxidant which is given in your syllabus. There are two only important antioxidant which you have to read. Ma'am, could you please explain what is BHA and what is BHT? बेटा these are the chemicals. ठीक है. ये आपकी chemicals हैं. butylated And hydroxy what is the term butylated means? butylated, if you read chapter 4 then you will understand what is butyl. अब
टेल मी। 4 1 कार्बन, कार्बन, Fifty. कार्बन। In methane we have 1 carbon and 4 hydrogen atom, ठीक है? That's why it is called methane. चैप्टर 4 पढ़ोगे उसमें ये सारे टर्म आपके आएंगे, वहाँ समझ में आएगा। अभी मैं बता दे रही हूँ, जनरल अगर समझ में आता तो ठीक, इट्स बेटर, अदरवाइज नो मैम, मतलब ये आप क्या लिख रही हैं? BH और BHT उसका रोल क्या होता है? मैं ये पूछ रही हूँ। These are the एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीजन का जो अटैक होता है फूड आइटम्स पे उसको प्रिवेंट करता है। How does keeping a dark place protects food? बेटा डार्क प्लेस पे रख दोगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा, एयर वगैरह के जो अमाउंट रहेगा लिमिटेड अमाउंट में जाएगा, तो आपका फूड क्या होगा, वो आपका डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इट प्रिवेंट एसिडिटी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मीथेन में कितना कार्बन है, सिंगल कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 4। ब्यूटिलेटेड मीन्स में एक टर्म आता है, मेथ होता है, एथ होता है, प्रॉप होता है, ब्यूट होता है। ये यू विल रीड इन चैप्टर 4। एथ में 2 कार्बन होते हैं, प्रॉप में 3 कार्बन होती है और ब्यूट में 4 कार्बन। तो यहाँ पे ब्यूटी मतलब यही होता है कि कैसे भी ऐसे कंपाउंड जिसके पास 4 कार्बन एटम, ठीक है? सो यू विल रीड इन योर फर्दर नेक्स्ट 4th chapter, in chapter 4 about it. And now why carbon is so important? Like in everything carbon is there. The food items we consume it is there. Because carbon is not more reactive or less reactive, ना ही ज़्यादा reactive होता है ना ही less reactive होता है, organic compound होता है, it is easily available होता है। when we burn any substance then we get carbon from carbon dioxide which is released by Iron has most isotopes. और आइसोटोप भी होते हैं। मेनली क्या है, इट इज इजीली अवेलेबल, वो हमें आसानी से मिल सकता है, ठीक है? और ये ना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना ही कम रिएक्टिव होता है, मॉडरेट रिएक्टिव होता है। दैट्स व्हाई कार्बन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, ठीक है? आइसोटोप इसके होते हैं, ये भी एक रीज़न है। बाकी अगर सारे एलिमेंट को देखोगे, जैसे अगर किसी और एलिमेंट को देखें तो इट इज नॉट प्रेजेंट एवरी टाइम एवरीवेयर, सारी जगह हर जगह नहीं अवेलेबल होगा, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं इतनी ज़्यादा है, ठीक है? दैट्स व्हाई वी कार्बन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इज इट ओके? सो ब्यूटिल वगैरह, हाइड्रोक्सी मतलब समझ लो यहाँ पे हाइड्रोक्सी, यहाँ बताया गया OH को हाइड्रोक्सी लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सी टर्म यहाँ पे OH के लिए यूज टर्म होता है, ठीक है? एनिजोल और टोल्यूइन ये सारे आपके केमिकल्स हैं, ठीक है? यू विल रीड इन चैप्टर इन क्लास 12। ये कंपाउंड है आपके, ठीक है? बेंजीन कंपाउंड है, ये आप ये 12th में पढ़ोगे। हियर यू विल ओनली लर्न द नेम, यहाँ पे सिर्फ आपको नाम पढ़ना है। इज इट ओके? मैं बता भी दूंगी अगर आपको व्हाट इज एनिजोल, व्हाट इज टोल्यूइन, सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। एनिजोल अगर बता दिए, एनिजोल में क्या होता है, ऐसा बेंजीन रिंग होती है इस तरह से, ये बेंजीन रिंग कहलाती है, इसके ऊपर OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एनिजोल हो गया। टोल्यूइन में क्या होता है, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया और इससे आपका CH3 ग्रुप अटैच है, दिस इज कॉल्ड टोल्यूइन। ये आपके सब्सटेंस हो गए, कंपाउंड हो गए, ठीक है? तो यू विल रीड दिस टॉपिक इन क्लास 12। ये टर्म आपका भी है नहीं। So there are 2 antioxidant. First one is BHA, butylated hydroxy anisole, and second one is BHT, butylated hydroxy toluene. ब्यूटिल यहाँ पे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, और ये जो आपके एनिसोल और टोल्यूइन है ये आपके केमिकल है, ठीक है? कंपाउंड है, बेंजीन कंपाउंड। इज इट क्लियर? Copper and silver. Is it clear? Yes, yes, ma'am. Yes. I hope all of you understand this chapter. Ma'am, Now, if you have any Ma'am, doubts, any query, you may ask. ma'am, what is the formula of copper rust and silver rust? Copper rust and silver rust. बेटा रस्टी अगर सिल्वर में होता है तो Ag2S, ठीक है? सिल्वर सल्फाइड Ag2S,
एंड कॉपर में आपका बेसिक कार्बोनेट फॉर्म करता है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। When copper react with CO2 and H2O, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट एक बैलेंस से ही लिखी जाती है कॉपर और इसके केस में, सिल्वर के केस में क्योंकि दिया नहीं गया है, तो इट गिव्स कॉपर कार्बोनेट इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये कॉपर का रस्ट का फॉर्मूला है। एंड व्हाट अबाउट सिल्वर? Why silver turns black? Because it reacts with hydrogen sulfide. ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो कई जगह ऑक्सीजन से भी रिएक्ट, तो ये फॉर्म करता है सिल्वर सल्फाइड। तो ये आपका फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। Any other questions? No, ma'am. No, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, you also post What? some. Ma'am, could you also post some questions about this chapter? Some extra. Okay, I will. बेटा practice. If you have sample paper, then you will practice on it. Yes, ma'am. Please purchase a sample paper and practice it. ठीक है, आप जितने भी sample paper previous year question, you will find which chapter you have Ma'am, but completed. like sample papers are updated only in the months of September and October. But you can Ma'am, we'll get the Yes, yes. latest one. I know you can download previous year papers of board exam. Now and sample solve it. papers are available online. Yes, beta, I know, beta, but you can download previous year question papers. आप previous year question paper download करें, जो भी chapter आपने पढ़ा उसमें जो भी question you will find it, you will find and solve it. This will increase your confidence level. You have that means if you have a great command on that topic.